Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elawat, and we are doing chapter 5 Principles of Inheritance and Variation. Dear students, in the previous module, we have talked about the Gregor John Mendel, and we have talked about the various steps of his hybridization experiment. And now we know that he selected garden pea for his experiment, and the most important feature is that the garden pea has 7 contrasting characters, right? So today we'll be starting with the inheritance of one gene. That is, we will talk about the monohybrid cross. ठीक है बेटा? We will talk about the monohybrid cross. Basically, this is a cross where we study the inheritance of one character. Okay? What we study? We study the inheritance of one character. ठीक है? Or we can define it as a cross that involves two plants which differ in one character. ठीक है? जैसे कि आप examples ले सकते हो. Like I've shown the examples here. Suppose you cross a tall plant with a dwarf plant. Okay, you cross a tall plant with a dwarf plant. Now both these plants, they should be pure for their trait. Pure for trait means if there is tall, I hope you remember tall is a dominant character and dwarf is a recessive character. So tall means we will be using capital T, capital T. It is pure means it is in homozygous condition. Homozygous condition means where both members of the pair are same. Okay. Dwarf means it is also pure for its character. So we will use small t, small t. Okay. As we know, the dominant character is always written by the written in capital letters, and the recessive character is written in small letters, but the letter will be same. Okay, so tall we'll write in the form of capital T, and short we will write as small t, right? So this is one example of monohybrid cross. Secondly, seed color. The color of the seeds could be yellow or green, right? And which one is the dominant character, everyone? Hurry up, tell me. Yellow. Okay, so yellow is a dominant character in comparison to green. So we will represent capital Y, okay, and for green we will use small y. Right, everyone? Okay. Always remember that one character is controlled by one gene. So tallness, right? It's a character. It will be controlled by a single gene. So this is a single gene, and the single gene will have two members, capital T. देखिए इसके अंदर दो है ना, दो members है ना. So ये दोनों members क्या कहलाते हैं? Alleles or factors. So two factors will make up one gene, and one gene will control one character. ठीक है बेटा जी? कि जैसे मान लेते हैं प्लांट की जो हाइट है वो एक जीन कंट्रोल करता है, और वो जीन कौन सा है? T. अगर दोनों मेंबर्स एक जैसे हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन है, वो प्योर कंडीशन है. लेकिन अगर दोनों मेंबर्स डिफरेंट हैं तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है. ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टू सेलेक्ट द प्लांट विद हैविंग ट्रू कैरेक्टर्स, हैविंग homozygous condition for the character. Now let's study in detail. Now here in this cross we are crossing a tall plant with a short plant. Okay, we are crossing a homozygous tall with a homozygous short or a homozygous dwarf. So homozygous tall को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये homozygous है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? capital T because it is a dominant character. Okay, और ड्वार्फ कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी बिकॉज इट इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर. राइट? सेकेंड स्टेप जो होगा बेटा वो होगा गैमीट्स फॉर्मेशन. गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है?
कि जो भी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ, राइट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ, रिडक्शनल डिविजन होता है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर गैमीट्स हो जाएंगे कैपिटल टी और यहाँ पर गैमीट हो जाएगा स्मॉल टी। नाउ देयर विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन विल बी देयर, क्रॉस फर्टिलाइजेशन विल बी देयर and we will have the first generation. Now Mendel called this generation, the first generation, as first filial generation, okay, and he represented it as F1. ठीक है, मेंडल ने इस फर्स्ट जनरेशन को क्या कहा? F1 filial generation, right, F1 filial generation। और ये जनरेशन होती है आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या दोनों मेंबर्स सेम है बेटा? Capital T small t, are both the members same? No. So it is a heterozygous condition. क्या है ये? Heterozygous condition है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होंगे वो heterozygous tall होंगे बेटा, ठीक है, heterozygous tall होंगे, where both the members of the gene are not same। ये heterozygous condition है। Now next step will be self pollination of the F1 generation। हम जो F1 जनरेशन है उसको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, ओके। जब सेल्फ पॉलिनेट करेंगे मीन्स वी आर क्रॉसिंग दिस हेट्रोजाइगस टॉल विद द हेट्रोजाइगस टॉल, ओके। यहाँ पर हम फिर से गैमीट्स बनाएंगे। तो हियर यू विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, वन इज कैपिटल टी, अनदर इज स्मॉल टी। नाउ सेम विल हैपन विद द अनदर पेरेंट, कैपिटल टी, स्मॉल टी, because both members of the gene are of different type, ठीक है। Now let's come to the new combinations। So जब हम new combinations बनाते हैं बेटा चेकर बोर्ड से, so we come to the conclusions। this ये चेकर बोर्ड जो नज़र आ रहा है, this is called as Punnett square, okay, we call it as Punnett square, ठीक है। क्या कहते हैं इस चेकर बोर्ड को? Punnett square। तो पुनेट स्क्वायर से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा देर आर 4 इंडिविजुअल्स, आप देखेंगे 4 इंडिविजुअल्स बनते हैं। द फर्स्ट इंडिविजुअल हैज़ कैपिटल टी, द सेकेंड इंडिविजुअल हैज़ कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड इंडिविजुअल ऑल्सो हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ स्मॉल टी, ठीक है बेटा जी, स्मॉल टी, क्लियर। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन सी the 4 individuals will be produced in the second generation। जो हमारी सेकेंड जनरेशन होगी उसमें 4 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, 4 इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इसमें से ये इंडिविजुअल टॉल होगा, ये इंडिविजुअल टॉल होगा, ये इंडिविजुअल टॉल होगा। सो हाउ मेनी आर टॉल आउट ऑफ 4? 3 इंडिविजुअल्स आर टॉल, ओके, एंड देयर इज 1 ड्वार्फ। सो द phenotypic ratio मीन्स जैसा हमें बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या है कि 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है। सो द रेशो ऑफ फिनोटिपिक रेशो इज 3:1। कौन सी रेशो बेटा? हाँ, 3:1, ठीक है। अब इसको जीनोटिपिक रेशो लेते हैं। जीनोटिपिक रेशो मीन्स द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीन्स का हम देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या है। तो जब हम जीन्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो बेटा वी सी एक इंडिविजुअल है जिसके पास कैपिटल टी है, तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस टॉल। व्हाट डू वी कॉल इट एज? होमोजाइगस टॉल, राइट। देन देर आर 2 हेट्रोजाइगस टॉल, 2 हैं जो हेट्रोजाइगस टॉल हैं, दैट इज 2। देन देर इज़ 1 होमोजाइगस ड्वार्फ, इट इज़ 1। सो जो एक्चुअल रेशो होती है, जीनोटिपिक रेशो है, वो है आपकी 1:2:1। बताओ ज़रा, व्हाट इज़ द जीनोटिपिक रेशो? 1:2:1। और आपकी फिनोटिपिक रेशो क्या है? 3:1। 3 इंडिविजुअल स्टॉल हैं, 3 प्लांट स्टॉल हैं आपके, और 1 प्लांट आपका शॉर्ट है, ठीक है बेटा। सो यू कैन मेक डिफरेंट क्रॉसेस विद ऑल द 7 कैरेक्टर्स। ये एक क्रॉस बनाया है, आप ऐसे 7 क्रॉसेस बना सकते हैं। यू कैन टेक एनी कैरेक्टर, ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर 1 जीन विल कंट्रोल 1 कैरेक्टर। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल। अब इसको हम एक बार अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए ध्यान से, कैपिटल टी, मैं रेशो दोबारा से लिख रही हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देयर इज स्मॉल टी। सो टोटल जो है हमारे पास 4 इंडिविजुअल्स हैं बेटा, टोटल इज 4 इंडिविजुअल्स। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी?
कितने इंडिविजुअल्स होते हैं कैपिटल टी वाले? 1. कितने इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे कैपिटल टी वाले हैं? 2. कितने इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे स्मॉल टी वाले हैं? 1. ओके, क्लियर? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल. सो कैन आई राइट 1/4? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं 4 और जो हमारे पास कैपिटल टी के इंडिविजुअल्स हैं वो 1. सो 1/4. ठीक है. सेकेंड इज कैपिटल टी स्मॉल टी की रेशो. कैन आई राइट 2/4? जो प्रोबेबिलिटी है हेट्रोजाइगस टॉल की है वो 2/4. सो 2/4 को हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इट विल बिकम 1/2. ठीक है, वी कैन ऑल्सो क्रॉस इट. अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, सो दिस बिकम्स 1/2. नाउ व्हाट अबाउट द स्मॉल टी? अगेन द रेशो विल बिकम 1/4. ठीक है, यही रेशो होगी ना बेटा? यस. ओके, सो लेट्स सी इट. तो जब जब मेंडल ने F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया है बेटा, सो इक्वल प्रोपोर्शन में 2 तरीके के गैमीट्स बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी. और फर्टिलाइजेशन के दौरान कैपिटल टी के पास 50% चांसेस हैं दैट इट कैन बी पॉलिनेटेड बाय स्मॉल टी और इट कैन बी पॉलिनेटेड बाय कैपिटल टी. ठीक है, क्योंकि जो गैमीट्स बन रहे हैं उनके अंदर भी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है. लेट्स सपोज ये आपके फीमेल है, फीमेल गैमीट्स हैं. ये स्पर्म्स है. स्पर्म्स देखिए, फीमेल गैमीट्स भी 2 तरीके के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्पर्म्स भी 2 तरीके के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, या मेल गैमीट भी 2 तरीके के हैं. सो इक्वल प्रोबेबिलिटी यानी 50% चांसेस है हर गैमीट के. और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि 1/4 ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? कैपिटल टी वाले होते हैं. 2/4 जो इंडिविजुअल्स होते हैं, 1/2 दैट कुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1/4 जो होता है स्मॉल टी होता है. तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है दैट फॉर्म्स इज 1/4 कैपिटल टी, 1/2 इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज़ 1/4. तो ये अभी अभी हमने कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किया था, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी. ठीक है बेटे, अब इस प्रोबेबिलिटी को हम एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन में लेते हैं बेटा. बायनॉमियल एक्सप्रेशन मीन्स इसको हम वापस से कैलकुलेट करते हैं, वापस से एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम अब इसको हम रिवर्स लेते हैं. सो ये हमारी रेशो निकलती है, जो हमारी टोटल रेशो जो अब तक हमने कैलकुलेट की है, इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? सो वी कैन एक्सप्रेस इज इन दिस फॉर्म ऑल्सो, हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी स्क्वायर. अगर आप बायनॉमियल एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं, इफ़ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ बायनॉमियल एक्सप्रेशन, सो वी विल कम टू द सेम कंक्लूजन अगेन. तो हमारे पास ये रेशो है ऑलरेडी. इससे हम अगर हम कैलकुलेट करते हैं, बायनॉमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्जन की कोशिश करते हैं, सो यू विल हैव बायनॉमियल एक्सप्रेशन हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी का जब हम स्क्वायर करेंगे यू विल गेट द सेम. तो हम इसी इक्वेशन को बायनॉमियल एक्सप्रेशन में इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो यू शुड रिमेंबर ax प्लस by होल स्क्वायर. तो ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन हो गई है हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. ठीक है बेटे, ओके. नाउ वन कुड बी, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हम फर्स्ट पेरेंट एज अ पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रू ब्रीडिंग हो? तो अगर हम उनको सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, like if we pollinate dwarf plant with a dwarf plant, it will always produce a dwarf plant. So this will ensure कि उसका जो combination है वो small t है. Same we can do with the tall plants, कि अगर हम 2 tall plants को आपस में क्रॉस करेंगे, tall will be crossed with tall, और उसको हम ग्रो करते हैं कई जनरेशन्स तक, so it should always produce tall plants. जितने भी प्लांट्स वो प्रोड्यूस करेगा वो टॉल प्लांट्स होंगे. तो थ्रू with the help of these crosses we will ensure that the parents that we are selecting in monohybrid cross, they should be pure for a character, they should be in homozygous condition. ठीक है. Now as I told you, Mendel made a similar observation with other pair of traits also. So he had 7 characters. This one we have discussed. You can make 6 more. So we can have 6 more monohybrid crosses. And out of these crosses, he concluded
that there are some factors that will be inherited from parents to offsprings. तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं चिल्ड्रन में, और ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स. व्हाट डू वी कॉल देम? नाउ वी कॉल देम एज जीन्स. ठीक है, मेंडल हैज़ कॉल्ड देम एज फैक्टर्स. मेंडल ने उनको जो है फैक्टर्स कहा था, लेकिन आज हम इन्हें जीन्स कहते हैं. So let's define genes. Genes जो हैं बेटा, they are the units of inheritance. Okay, what are genes? Genes are units of inheritance and they contain the information which is required to express for a particular information. ठीक है? Particular character. They contain the information that is required to express a particular character. And the genes that code for a particular pair of contrasting traits, they are called alleles. जैसे सपोज हम ये बात करते हैं, ये आपकी एक जीन है, इसके दो मेंबर्स हैं, तो ये आपकी दो अलील्स हैं, 2 alleles. So 2 alleles make a single gene. ठीक है? Okay. So let's come to your homework for today. First of all, you make notes of the topic and you read the page numbers 71 to 73. And if there is any query, any doubt you feel, you can share your queries with me. Okay, bete? Okay, so bye everyone. That's all for today.